మనం ముసరంబాగ్ ఏరియా నుంచి దిల్సుగర్ ఏరియా నుంచి డైరెక్ట్గా మెయిన్ రోడ్కు కలపడానికి ఒక వే బ్రిడ్జ్ను నిర్మించి ఇక్కడ నుంచి ఒక రోడ్డును నిర్మించినట్టయితే ఇదంతా సేఫ్టీగా ఉంటుంది, జనానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. చిన్న గల్లీలలో బస్సులు రావడం వలన ఆటోలు అవి తిరగడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. అట్లాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి. सरकार के द्वारा जो बनाई गई कराया दिया गया, तो सरकार ही आगे जो है आवास को खत्म कर रही है। सरकार ने यहाँ कपड़े धोने के लिए व्यवस्था पूरा इनके द्वारा क्या क्या इतनी दूर से पानी चल रहा है। नदी का पानी तो बह रहा है और नदी कभी हमको यहाँ टच भी नहीं हुई साहब। एक बार 1908 में नदी आई थी, उसके बाद अगर नदी हमको टच होती तो हम कैसा रह सकते घर बना के। नहीं उनको ठीक करना है। दूसरा उनको तो विषय नहीं है, ఇక్కడ రోడ్ సమస్య ले ले अभी ले 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 तू भी ले पकड़ अंके जी तुम पकड़ तू भी ले हमारी सर मैं कहीं बोलूँ पकड़ ये तेलुगु में बोल दे रही है ना। ये निर्णय से आप लोग जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी से क्या होता है, अपना बच्चा है, घर में बूढ़ा है, छोकरा है, वो सब लोगों को दिक्कत पड़ती है। तो इस सरकार को आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में, आपको हिम्मत देने के लिए, आपके पास रह के, आपके घरों में खा के आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये हिम्मत दे रहे हैं कि ये सरकार कुछ भी करे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे बोल के हिम्मत देने के लिए मैं आया हूँ। ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको उचकाने के लिए नहीं, जब इतने पूरे जो आदिवासी लोग हैं उनकी पूरी जमीन हड़पने के लिए तैयार है, और यहाँ पर गरीब लोगों की जमीन हड़पने के लिए तैयार है। మన దగ్గరికి వచ్చి ప్రజల సమస్యను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు అధికారులతోటి ఎవరో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఈ ఏరియా అంతా కబ్జా అయిపోయిందని చెప్తే సరి అనే విధానం కాదు. ఇది కబ్జా చేసింది కాదు. కొంతమంది దగ్గర నీవు రోడ్డు సరిగా లేదు, కానీ రోడ్డు ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇస్తే బిల్లు కట్టించుకుంటుంది, వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తే వాటర్ కనెక్షన్కు బిల్లు కట్టించుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే నీవు ఇక్కడ ఇల్లు నంబర్ ఇస్తే ఇంటికి ట్యాక్స్ కట్టబడుతుంది. మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా, మేము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ట్యాక్స్, ఒకవేళ మేము కబ్జాలో లేము అనుకో, ఇది మేము ఇల్లీగలే అనుకో, ఇల్లీగల్ అయితే నువ్వు కనెక్షన్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఇచ్చినావు, మాకు వాటర్ సప్లై ఎట్లా ఇచ్చినావు, మాకు కరెంట్ బిల్లు ఎట్లా తీసేసుకుంటున్నావు, మా దగ్గర ట్యాక్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నావు అని ప్రజలందరూ అడుగుతున్నారు నిలదీసి. అయితే నేనేమంటానంటే, ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి, నువ్వు ప్రజాప్రతినిధివి, ప్రజల సమస్యను తెలుసుకో, ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి వీళ్ళను మెప్పించు. వీళ్ళు ఒప్పుకుంటే మాకేం అభ్యంతరం లేదు, కానీ వాళ్ళ యొక్క 3 అంతస్తుల ఇళ్లను తీసేసి ఈరోజు రోడ్డు పైన పారేస్తానంటే ఇది కుదరని పని, ఇది సరి అయిన విధానం కాదు. నేనేమంటున్నా అంటే, ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఏమో ప్రచారం చేసుకుంటారంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ బీద వాళ్లను ఉసుగొల్పుతున్నారు. మనం మిమ్మలను ఏమంటున్నారంటే, మీరు గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడమని చెబుతున్నారు. మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఆయన వచ్చి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజల దగ్గరకే వచ్చి ప్రజలను మెప్పించి వాళ్ళను షిఫ్ట్ చేస్తావా
వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇస్తావా, వాళ్ళకు ఎలా సంజాయిస్తావా అనే సంగతి నీ బాధ్యత. कहना चाहे तो आप लोग डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये जो मूसी नदी है ना, इस रिवर को आप सुंदरीकरण करना चाहते हो तो हमको एतराज नहीं है. हम एक दिन मजदूरी करके आपको साथ देंगे, एक दिन मजदूरी करके आपको साथ देंगे हम. लेकिन नदी को साफ करने की जगह हमको क्यों साफ कर रहे हैं? नदी को सुधारने की जगह नदी को सुधारिए और इस रिवर को आप जो है ना ठीक से नवीनीकरण कीजिए. हम तुम्हारे को साथ देने के लिए तैयार. కానీ మూసీ నది సుందరీకరణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి మేము ఒక రోజు కూలి వచ్చి చేస్తాం. దానికి సుందరీకరణ చేద్దాం, కానీ మమ్మల్ని నిలగొట్టడం అనేది సరైన విధానం కాదు. అన్ని గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి మమ్మల్ని మెప్పించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ये లోకల్ మా బస్తీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లోకల్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా. నేను నా పేరు ఆర్ కిషన్ లాల్. మేము ఇక్కడ 80 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. టెక్స్ అన్నీ క్లియర్ ఉన్నాయి. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా సార్కి ఇస్తున్నాను, ఎప్పటిది చూసుకోవచ్చు, మీరు సమర్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్, సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్ 1972-1982లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ చెల్లించిన వాళ్ళు సర్కార్కు, ప్రభుత్వానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ ఇది 79 సార్. అది 70 ఉందట. हाँ अभी 79. हमारे जो दादा थे, हमारे पिताजी थे, ये प्रॉपर्टी निजाम सरकार के पीरियड में उन्होंने खरीदी और आज़ादी से पहले यहाँ पर बसे हुए. जब से जो है ना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बना, आज से 50 साल पहले, जब से हम टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स पेड है. अगले साल 2025 तक भी जो है ना म्युनिसिपल का टैक्स कंप्लीट है. और ऐसे में आप इतनी बड़ी फैमिली है, जैसा कि साहब ने बताया, बड़ी फैमिली है, 7 भाइयों की 43-45 मेंबर हैं इसके अंदर. और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और बोलते हैं कि जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट है उनको हम एक डबल रूम देंगे. अरे जिनके नाम पे था वो तो स्वर्गवास हो गए, इंतकाल हो गया, उनका मर चुके हैं वो. उसके बाद हमारा कौन सा रास्ता है? आज हम 2 गज ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारे पास लाखों का टर्नओवर है. हम आज यहाँ नहीं तो कल और कहीं जाके बिजनेस लगा लेंगे, घर बना लेंगे या खरीद लेंगे. वो स्थिति में नहीं है. इसलिए एक ही रास्ता है कि आप जितना डेवलपमेंट करेंगे आप करो, लेकिन अगर हमारे मकानों को आप अगर बुलडोज़र लगाएंगे, बुलडोज़र के नीचे सो के हम जो है ना अपनी जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे. इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो इलीगल थोड़ी है हम. अरे सेल्टी डॉक्यूमेंट है. जो लोग, जैसा कि बताया गया कि भाई जो लोग नदी नालों में जो है ना आके इलीगल कब्जा करके जो है ना झोपड़ियाँ बना लिए, घर बना लिए थे, वैसे लोगों को जो है ना आप डबल बेडरूम दिए, उनके तो किस्मत खुल गए. हम जैसों को जो है ना बरसों से यहाँ पे कितने पीढ़ियाँ गुजर गए, हमको जो तकलीफ कभी नहीं हुई. आज रेवंत रेड्डी साहब आप आने के बाद कोई गारंटी तो आप पूरी नहीं कर सके. हाँ, पिछली गवर्नमेंट में जो है ना गरीबों के वास्ते जो है ना डबल बेडरूम बना के जी सरकार, बिहार सरकार, उन्होंने बना के देने का काम कर रहे. आप जो है ना घरों को तोड़ने का, उजाड़ने का काम कर रहे. आप डेवलपमेंट करो ना, पे फैक्ट्रियाँ डालो, कंपनियाँ डालो, गरीबों के लिए दवाखाना बनाओ, फ्री सर्विस दो उनको, एजुकेशन पे फ्री सर्विस दो उनको, लोन दो. भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड लेकर गरीबों के साथ खड़े होने के लिए निश्चय कर लिया है. वो कहता है कि गरीबों को ज़बरदस्ती से सरकार सता रही है, जबकि ये लोग काबिल है. ये लोग रजिस्ट्रेशन पेपर्स है इनके पास घर का टैक्स भर रहे हैं लोग,
बिजली का बिल भर रहे लोग, पानी का बिल भर रहे लोग, जब इतने सारे पैसे लेकर सुविधा आपने दिया है, ऐसे लोगों को जो है ना अब जो सरकार है वो जुल्म कर रही है इन लोगों के ऊपर। इस जुल्म के खिलाफ़ में हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो नदी है, बाजू में जो मूसी रिवर चल रही है, मूसी रिवर के ठीक करने के लिए, मूसी रिवर को सुंदरीकरण करने के लिए, मूसी नदी को जो है ना ठीक से लोगों को जो है ना अमल में लाने के लिए अगर कोई काम करते हैं, जिसके लिए हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी निज़ाम ने इसको बहुत अच्छे ढंग से चौड़ेपन से बनाया है। उनको बड़ी नज़र से, उनकी सोच से इधर उधर दो किनारों पे जो लोग बसे हैं उनको कोई तकलीफ़ न हो, ऐसी विचार से उन्होंने बनाया है। और कोई लोग जो है ना नदी के अंदर जो है ना खेती बाड़ी कर ले रहे हैं, कोई जो गरीब लोग हैं, तो आपको जहाँ दिक्कत है, जहाँ सुंदरीकरण कर सकते, आप जो है ना बगीचा बनाइए, अच्छे से अच्छे जो है ना पार्क बनाइए, जिस ढंग से आप बना ना सकते हैं बनाइए। और लेकिन जो सारे हैदराबाद का ड्रेन अगर इस नदी में पहुंच रहा है तो नदी, मूसी नदी जो है ना गंदी होती जा रही है। आप उसको सुधारने के लिए कोई योजना बनाइए। आपको उस योजना से इस नदी को पवित्र बनाने में कामयाबी मिलती है। ऐसी नदी को आप अपवित्र बनाने के काम तो कर रहे हैं। एक तरफ तो ड्रेनेज खुला कर दिए, हर गांव वाला जो है ना आ रहा है, हर घर वाला जो है ना अपना कनेक्शन मूसी नदी के अंदर छुड़ा दे रहा है। तो उससे हो रहा ये है कि मूसी नदी में बदबू पैदा हो रहा है, जो पड़ोसियों को नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी को सुधारने के लिए आप जो भी स्टेप लेंगे उसके लिए हमारी जनता आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जनता को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाने की कोशिश किए तो हमारे से पहले जनता ही आपसे भिड़ जाती है। जनता आपसे भिड़ के हमारा स्टेट का नाम बदनाम करने की जगह आप खुद जो है ना जनता के पास जाइए, जनता से जो है ना राय मशवरा कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जनता के साथ में जब बातचीत किया, आपके भाषण का दौरा मैंने दिया, आप महाराष्ट्र में कहे हम 6 पॉइंट जो योजना लिए थे, 6 गारंटी वाली जो बात थी, बोले हम ये कर दिए, गारंटी वो हो गई। भाई किसानों को आप कितना जो है ना ऋण माफ़ कर दिया है, कितना जो है ना कर्ज माफ़ कर दिया है, कितना इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है, उसका तो जायज़ा दीजिए। और उन बसों में जो है ना महिलाओं के लिए आप सुविधा कर रहे हैं, वो कितने जो है ना किस इलाके में घूम रही, उसके बारे में तो आप जानिए। आपके 6 गारंटी पहले पूरा कीजिए, उसके बाद मूसी नदी की गारंटी के लिए आइए। आपको सहूलत होगा और जनता को सहूलत होगा। जनता की सहूलत के लिए हम एक नया प्रपोजल आपको देते हैं। आपके ऑफिसर लोग दिए या नहीं दिए मैं ये नहीं जानता, लेकिन मूसी नदी यहाँ से पूरा आखिरी तक जाती है, वहाँ से एक रोड फार्मेशन आप जो है ना पिलर डाल के कीजिए। मूसी नदी की ज़मीन आप कब्ज़ा मत कीजिए। आप सरकार है तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी बसेस चलने के लिए, लोगों को सहूलत के लिए जो है ना एक रोड फार्मेशन कीजिए, पिलर्स के ऊपर से ओवर ब्रिज बनाइए ताकि जो है ना जनता को सहूलत हो सके। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सामने से पत्थरगट्टी से इधर जो रोड आती है हाई कोर्ट के सामने से, वहाँ इतनी पब्लिक, इतनी ट्रैफिक है कि लोग चलना मुश्किल है। ऐसे ट्रैफिक को सही दिशा देने की कोशिश जो है ना गवर्नमेंट करना चाहिए। प्रगति के नाम पे हमारे प्राण संकट में न डाले, प्रगति के नाम पे प्रगति नगर के लोगों का प्राण संकट में न डाले, ऐसा मैं जो है ना गवर्नमेंट से अर्ज करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि सरकार खुद चीफ मिनिस्टर ही उतर के यहाँ आए और जनता से, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से आप बात कीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आपके एमपी, आपके एमएलए, आपके कारपोरेटर अगर होना बोले तो अपोजिशन वालों को बुलाए तो हम भी आते, लेकिन जनता से पहले सुनो, जनता क्या बोलती है आपको, जनता के मन में क्या है, जनता का विचार क्या है,
उसको जो है ना हम साथ देने के लिए तैयार है।